Good morning everyone. My name is Umesh Goyal. I have secured All India rank 388 this year and I got IPS as a service. So talking about my journey, let me tell you this is my last attempt in which I cleared the UPSC with this rank, and in my initial 5 attempts I didn't get any rank, and I'll explain what were the problems and challenges I faced throughout this journey so that you people don't have to face such problems. And I wish whosoever is watching this come up with a good rank in initial attempts only, first second attempt. And as you can see that I am at Raj Malhotra IAS, and Raj sir personally has guided me a lot, helped me during my preparation throughout these years. The association with Raj sir is not of this attempt only, it is way back around 5 years back when I was giving my Punjab PCS attempt also, and I was fortunate enough to clear my Punjab PCS in very first attempt with rank 19. And for past 2 years I was working as block development and panchayat officer in Punjab, and this attempt in the last also I gave PCS exam to get SDM as a service, but I cleared again with the rank of 23rd, but still didn't get the SDM. Maybe I think God has some other plans for me, and now I got IPS. So I'll talk about all this in detail as well, but I want to really thank Raj sir for all the guidance he and the efforts he has put in me throughout this journey. Talking about my background, I think those who are there can relate, can import, can take some of the things which I am going to tell, which can help them secure a good rank in future. I think what I realized through my journey, that there are 2 things that I can give to the aspirants. One is never give up. I'll tell you why these points. Second, if I can, then you also can. Let me tell you why. Never give up. ये मैंने इसलिए लिखा है as this was my last attempt, 6th attempt in UPSC. So there were times when I was very low, very depressed, at times when I couldn't clear my interviews, my prelims. The journey has been such, so but the last attempt was enough for me to get a good service, and through which I can realize my inner satisfaction dream of what I'll tell you why I chose for these services. Let me tell you why IAS or IPS. I graduated from Chitkara University way back in 2011. Through my stream was ECE. Then I went for ME from Peck University of Technology, Chandigarh. Again branch was electronics. After this I got a placement in a private company at Gurugram. I was in R&D and doing very well, but the kick I was not getting, because we were doing work, we were making projects, but the real impact which I want to see through the happy faces of the people, I was not able to see that from the private sector. Here the disclaimer is, I don't want to discourage anyone who is in private sector or wants to join private sector. There are many positives, but for me personally it was the happy faces which I want to see through my work. So इसलिए I dropped this idea and quit this service and started preparing for UPSC after my post graduation. अब मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा यहाँ बताऊँ कि आपको और क्लैरिटी होगी. I was around 6 years old
when my father passed away. So I am the eldest in the family. मेरा एक younger brother है. My mother, जिनके पास सब कुछ था उस समय, हमारी फैमिली बिजनेस क्लास फैमिली थी. वी हैड द राइस शेलर्स एंड ऑल, सब कुछ. पर एक झटके में वो एक इंसिडेंट की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया. माई मदर, हमें शिफ्ट होना पड़ा रेंटेड अकोमोडेशंस में. हमें मदर को डेली लाइफ के हर रोज़ के चैलेंजेस आप इमेजिन करके देखो. वो टाइम मेरी एज के ही, हमारी एज के अराउंड 32 में एक लेडी जिसके 2 बच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं है और उनको वहाँ से स्टैंड करना है अपने आप को. आपको पता ही है कि कुछ ना होने का मतलब सब कुछ चला जाता है. जब फैमिली प्रॉब्लम्स और होती हैं सब कुछ छोड़ना पड़ता है. बट वन थिंग माई मदर हैज़, व्हाट वाज दैट? शी नोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. वो अच्छा, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा था. शी टुक अप अ टीचिंग जॉब इन अ प्राइवेट स्कूल फ्रॉम वेयर आई केम. आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम जगराऊँ डिस्ट्रिक्ट लुधियाना. वहीं पे उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट स्कूल में जॉब ज्वाइन करी. एंड इनिशियल मुझे अभी मदर बताते हैं तो उनकी सबसे पहली सैलरी थी 250 रुपीज़ पर मंथ. बट उन्होंने ये सोच लिया था कि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो मुझे अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है. बस ये अपने आप बड़े होकर सब कुछ इस्टेब्लिश कर लेंगे. मुझे याद है उनकी स्ट्रगल, मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी रही होगी जो मेरे से रिलेट करेंगे कि हाँ कैसे चैलेंजेस हैं. फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, डेली लाइफ स्ट्रगल्स थी, फिर कैसे हमें गाइडेंस कुछ नहीं थी. फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, फर्स्ट सिविल सर्वेंट मैं हूँ अब घर में. तो ये सब चीज़ें आप रिलेट करोगे तो इसीलिए बता रहा हूँ. तो अब क्या था कि एजुकेशन उन्होंने अपना मोटिव बनाया कि हमें पढ़ाना है सिर्फ. अब मुझे याद है कि इंसिडेंट, हम बहुत छोटे थे, हमें तो पता भी नहीं था क्या हुआ हमारे साथ, इतनी समझ नहीं थी जब फादर एक्सपायर हुए. तो मेरी मदर की ने, मुझे याद है कि जो स्कूल ज्वाइन किया था, हम दूसरे स्कूल में पढ़ते थे, मदर दूसरे स्कूल में थे. वो भी बताऊंगा उसके पीछे क्या रीज़न था. अब वहाँ तक जाने के लिए घर से 2 रुपये बस का फेयर था. मेरे मदर वो 2 रुपीज़ वो बचाते थे, पैदल चलते थे, हमें भेजते थे ऑटो स्कूल वैन से. जब हम इतनी समझ आने लगा हमें कि मम्मी क्यों पैदल जाते हैं, तो हमने एक बार पूछा, मम्मी आप भी जाया करो उसमें. मम्मी बोलते नहीं आप नहीं अभी समझोगे. आज समझ आता है वो 2 रुपये की जो सेविंग थी उससे आज उन्होंने एक अपने बेटे को IPS बना दिया, दूसरा पटवारी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में ही. तो लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें, ये स्ट्रगल जो फेस किया. फिर जो दूसरी चीज़ थी कि उन्होंने हमें, अब उनकी थिंकिंग देखिए आप, एक वो इतने कम एज में उन्होंने कैसी उनकी फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग थी. उस समय जबकि हमें ज़रूरत थी, पैसे बचाने थे, और जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो अगर उसी में बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये होता था कि आपको फ़ी कंसेशन मिलेगा. बट मेरे मदर ने इस सोच से हमें उस स्कूल में नहीं डाला कि दूसरे स्कूल में इसलिए रखना है क्योंकि अगर इसी स्कूल में मैं रहूँगी, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा होता है कि टीचर्स ये देखते हैं कि टीचर का बच्चा थोड़ी लूज़ मार्किंग कर दे. तो मेरे मदर नहीं चाहते थे कि इनको हाफ मार्क का भी एडवांटेज पूरी लाइफ में कभी मिले. वो हाफ एक मार्क जो उन्होंने, वो जो एडवांटेज बताया उससे पता नहीं कितने हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ आए होंगे जो कि हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग. फिर हम अपने मदर को देखते थे इतना डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क, क्योंकि उनको पता था कि उनको काम करना है तभी उनको अपने बच्चों को सेट करना है. तो वो मुझे लगता है वो वैल्यूज़ अब हमारे अंदर आए हैं कि हमें भी वैसा ही जो डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क है वो मेरे में भी है. मैं काम करता हूँ तो काम अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना, छोड़ देना है. तो ये चीज़ें बहुत सी इनकलकेट करी और मुझे लगता है कि होपफुली इससे आपको पॉजिटिविटी मिली होगी कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कभी भी गिव अप नहीं करना हमें. अब इस पॉइंट पे हम वापस आते हैं और इसी के साथ ये रिलेट होता है, इफ़ आई कैन देन यू ऑल्सो कैन. मतलब अगर मैंने ये सब फेस करके ये अचीव किया तो आप भी कर सकते हो. ये मत सोचो कि लाइफ में ये स्ट्रगल है, लाइफ का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है. हमें इसी स्ट्रगल से निकल के आगे पहुंचना, तभी वो जो सक्सेस का मज़ा होगा ना, वो सक्सेस का मज़ा हम वैसे नहीं ले पाएंगे. बिना स्ट्रगल के मज़ा नहीं आता सक्सेस का, तो और उसकी वैल्यू भी कम होती है, मुझे ऐसा लगता है. अब ये इससे आगे हम चलते हैं.
अब मैं थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बता देता हूँ कि मैंने मेरे प्रीवियस अटैम्प्ट्स कैसे रहे और मैंने कहाँ कहाँ किस लेवल तक पहुँचा और क्यों फेल हुआ, और लास्ट में 6th अटैम्प्ट में वाई आई सक्सीडेड ओनली इन द 6th अटैम्प्ट। सबसे पहला अटैम्प्ट मेरा था 2015। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में आई पास्ड आउट फ्रॉम पैक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़। 14 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, 15 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। आई क्लियर्ड प्रीलिम्स बट फेल्ड इन मेंस मिजरेबली। बहुत ही बेकार मार्क्स थे, मतलब GS1 में एक अच्छे थे, 2 में 60, 3 में 65, 4 में 75 ऐसे करके। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने यहाँ मेरी मेंस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने जो गलती की थी, क्या गलती की थी यहाँ पे, माई मिस्टेक वॉज आई डिडंट डू द इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। मेरा फोकस प्रीलिम्स पे था, उससे प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया बट उसका फ़ायदा नहीं हुआ ना, मेंस क्लियर नहीं हुआ। एट द एंड हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए हमें। तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड रखनी है अपनी प्रीलिम्स और मेंस की। देन मेरा सेकंड अटैम्प्ट 2016, आई रेक्टिफाइड दिस एरर। मैंने डेली के 4-5 घंटे डिवोट करने स्टार्ट किया फॉर मेंस ओनली। राइटिंग प्रैक्टिस करता था, अपने टीचर्स सर के साथ जो भी डिस्कशन होनी डिस्कस करना, जो जो मेरी गलतियां थी उसको इम्प्रूव करना। मैं 4-5 घंटे में सिर्फ 4-5 क्वेश्चन लिखता था स्टार्टिंग में, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन लिखना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एनालाइज योर आंसर। एनालिसिस यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने क्या लिखा और क्या चीज़ें आपने नहीं लिखी, क्या आप ऐड कर सकते थे, ऐड ऑन्स क्या हैं। इसके लिए फिर मैं वही सर के पास गाइडेंस लेता था, कभी अपने फ्रेंड्स से देखता था, कभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता था। तो ये सब, इनसे मुझे क्लैरिटी हुई कि अच्छा मेरी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। 2016 नेक्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, प्री क्लियर्ड, मेंस क्लियर्ड, इंटरव्यू के बाद आई फेल्ड। और मेंस में मेरे मार्क्स जंप हुए थे 600 कुछ 60 समथिंग थे मेरे 2015 में। यहाँ पे मेरे मेंस के मार्क्स थे 810 प्लस कुछ थे। बट अगेन इंटरव्यू में मुझे मार्क्स मिले थे 164, टोटल मेरे मार्क्स थे 974 दैट टाइम, एंड आई मिस्ड द बस बाय 7 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या गलती हुई, यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई, बट यहाँ पे ये था कि कंपटीशन इतना कट थ्रोट है कि थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल भी रहता है कि हम नहीं बोल सकते कि श्योरिटी के साथ हम ये मिस करेंगे कि नहीं करेंगे। बट हाँ, ये ज़रूर है कि एक चीज़ मैं बताऊँगा, मैंने 6th अटैम्प्ट में क्या चेंज ऐसा किया कि जो मेरा अभी सिलेक्शन हुआ पहले नहीं हुआ था, वो बाद में जब आएगा तब बताता हूँ। बट इसमें यही है कि ये मेरा सबसे बेस्ट अटैम्प्ट मैं मानता हूँ कि इसमें मैंने इतनी मेहनत भी इतनी की थी कि ये यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड भी बहुत ज़्यादा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब इधर आई विल गेट IAS और IPS एट लीस्ट, उससे नीचे मैं नहीं जाऊँगा, बट आई वॉज नॉट इन द लिस्ट एट ऑल। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, 2017 10 और 15 डेज़ लेटर देर प्री 2017 का प्री आ गया, और इसका इफ़ेक्ट ये था फेलियर का कि मेरा प्रीलिम्स ख़राब हो गया, यहाँ पे नहीं हुआ। 2018 अगेन माई प्रीलिम्स, आई फेल्ड इन प्रीलिम्स। यहाँ पे क्या रीज़न था फेलियर का, यहाँ पे ये रीज़न था आई डिड नॉट एनालाइज द चेंज इन पैटर्न इन प्रीलिम्स। मेरे प्रीलिम्स में 2015 में मार्क्स थे अराउंड 123 जीएस में बता रहा हूँ, और 2016 में थे 117 के आसपास। तो आई वाज लाइक कि प्रीलिम्स हो जाएगा, बट आप सबको पता है, यू नो दैट अब यूपीएससी का पूरा पैटर्न प्रीलिम्स का चेंज हो गया है।
इसी टाइम अराउंड ये चेंज हुआ था और मैंने ये अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया था जिसकी वजह से वहाँ पे प्रीलिम्स में गड़बड़ हो गया। फिर क्या हुआ 2019 में प्रीलिम्स क्लियर्ड, मेंस क्लियर्ड, इंटरव्यू के बाद आई मिस द बस बाय 16 मार्क्स अगेन। अब यहाँ पे क्या गलती हुई, मिस्टेक नहीं बोलूँगा, यहाँ पे मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। मेरा जो ऑप्शनल था दैट वाज पबमेड अर्लियर, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे पास गाइडेंस नहीं थी या मुझे टीचर्स ने अच्छे से नहीं कराया। दे वर एट देयर बेस्ट टू गाइड। इनफैक्ट मेरे में ही कुछ था कि मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया अच्छे से सब्जेक्ट को। मेरे यहाँ पे पबमेड में मार्क्स बहुत कम हो गए, 221 ओनली, जिसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था 2019। अब इतने फेलियर्स और इतने चैलेंजेस के बाद मुझे था कि घर पे भी थोड़ा प्रेशर था कि हाउ विल मैनेज, अगर एक लास्ट अटैम्प्ट रह गया। इतना सोचा भी नहीं था कि इतने दूर तक जाएंगे, बट वो बोलते हैं ना कि जब एक मान लिया कि मैंने देना है, करना है तो करना है। और तब आया पंजाब पीसीएस का पहला अटैम्प्ट 2019, 18 और 19। और एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि भगवान की इतनी दया रही कि आई गॉट 19th रैंक एंड आई ज्वाइंड एज ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर इन पंजाब ओनली। अब इसका मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ लास्ट अटेम्प्ट में, ख़ास करके इंटरव्यू में। मेरे इस वाले अटेम्प्ट में इंटरव्यू में भी मार्क्स कम थे, ओनली 139 थे। अब मेरे लिए ये भी एक चैलेंज बन गया था। अर्लियर इट वाज एवरेज 164 थे पहले, जब सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था। तो अब फिर आया, ये मेरे लिए एक बहुत बूस्ट था, क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम किया, वो नॉलेज एक्यूमुलेशन हुई। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपका मोटिव आप यूपीएससी ही रखो टिल द टाइम यू डिडंट क्वालिफाई, लास्ट अटेम्प्ट तक हमें पूरा मेहनत से करना है, ऑनेस्ट अप्रोच के साथ करना है। बट इन बिटवीन पंजाब पीसीएस का भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ज्वाइन करिए, वो फ़ायदा करेगा आपको। बट टारगेट हमारा यूपीएससी ही रहेगा। अब लास्ट इस अटेम्प्ट में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपको पता है क्लियर हुए, और इंटरव्यू में भी मार्क्स मेरे इंप्रूव हुए, ऑल बिकॉज ऑफ दिस जॉब। मेरी 70% जो इंटरव्यू थी वो इट वाज फ्रॉम बीडीपी ओनली। तो ये सारा मेरा 6 अटैम्प्ट्स की जर्नी थी। अब मैं एक एक करके आपको प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। प्रीलिम्स, एज यू नो दैट प्रीलिम्स 2 papers are there, GS and CSAT. So first talking about CSAT. CSAT में this is qualifying. अराउंड 67 मार्क्स हमें चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जो मेजर आपको मैं एडवाइस दे सकता हूँ वो ये है कि फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एरिया। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, एज वी डोंट हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस हेयर, वी हैव टू जस्ट क्वालिफाई। एंड आजकल सीसेट बहुत चैलेंजिंग हो गया बच्चों के लिए। सो स्ट्रॉन्ग एरिया इन द सेंस, फॉर एग्जांपल फॉर मी इट वाज एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाज माय स्ट्रॉन्ग एरिया। That didn't mean that I didn't know the comprehension. I was comfortable in comprehension, but not all questions. So first of all, you should find your strong area. Then, in exam hall या question paper में, you have to find right questions for you. Right questions in the sense, for example, in case of comprehension, you know there are multiple types of questions asked in comprehension. One are the direct ones where you just have to select the statements from the paragraph itself, deduct your answer, and that's it. Second, there are questions, the tweaked ones, like what is the logical inference from the passage, like ways.
सो व्हाट आई डिड वाज कि सबसे पहले मैं अपने लिए चूज़ करता था कि हाँ मेरे पास एक कॉम्प्रिहेंशन है, और उसमें भी क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ दिया है, कोई कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होगा जिसमें एक पैराग्राफ पे 2-3 क्वेश्चंस होंगे, सेम पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पढ़ो और 2-3 क्वेश्चंस कर दो। बाकी कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हैं, एक पूरा पैराग्राफ पढ़ो एक ही क्वेश्चन, एक पूरा अगर पैराग्राफ पढ़ो एक ही क्वेश्चन। तो मेरा सबसे पहले ये होता था कि ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिल रहा है कि एक पैराग्राफ पढ़ने पे मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा उसमें क्या है कि काम कम हो रहा है। मैंने एक बार पढ़ लिया, 3 क्वेश्चन मेरे हो गए, तो 2.5 मार्क्स 7.5 मार्क्स ही हो गया यहाँ पे। अगर ये नहीं मिल रहा आपको, तो इन क्वेश्चंस में वो वाले क्वेश्चंस फाइंड करो जो आपको, जिसकी स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस में पूछी है वो आपको ईजी लग रही है, या तो वो डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आप फाइंड करो, जिसके जो सीधा सीधा कुछ नहीं उसमें आपने लगाना, एक पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और सीधा उसका आंसर वहाँ से मिल गया, ये वाले चूज़ करो। तो ये बहुत ज़रूरी है, फाइंडिंग द राइट क्वेश्चंस फॉर यू, क्योंकि हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। और थर्ड ये है कि सीसेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है प्रैक्टिस। अब राज सर भी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है, तो यहाँ पे क्लासेस में आपको नोट्स दिए जाते होंगे। क्लासेस में बहुत सारी सीसेट की क्लासेस में टॉपिक वाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, उसको प्रैक्टिस करो आप जितना ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ ही सीसेट पॉसिबल है। वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, कैसी मिस्टेक्स होती हैं, मेरे साथ हुई हैं मिस्टेक्स। वहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स भी होती हैं जब हमने प्रैक्टिस नहीं की होती। 6 × 2 सारा कर लिया हमने सॉल्व, 6 × 2 हम 18 लिख करके सॉल्यूशन उस हिसाब से निकाल देते हैं, ये भी गलती होती है और सीधा सीधा आंसर ख़राब हो गया। ये प्रैक्टिकली फेस किया है मैंने, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अभी लगेगा शायद कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये है, ये सच्चाई है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वहाँ जाके ऐसी गलतियाँ होती हैं और फिर बाद में बड़ा वो लगता है कि यार ये क्यों हो गया। और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस जब आपने करनी है तो ये घर पे बैठ के प्रैक्टिस आप करो, बट जो क्वेश्चन पेपर है आपको 80 क्वेश्चंस वाला, वो आपको इंस्टीट्यूट में बैठ के एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में बैठ के ही सॉल्व करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रियलाइज़ नहीं होता, ये जब एक अटैम्प्ट ख़राब हो जाता है ना, फिर रियलाइज़ होता है जब हम एनालाइज़ करते हैं कि मैंने घर पे तो बड़े अपने आप को ईजी उसमें डाल के सिचुएशन में कर रहा था, तो वहाँ पे सॉल्व हो रहे थे, बट ये वहाँ पे मेरे से क्यों गलत हो गया एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर होता है टाइम का। घर पे हमारे पास थोड़ी सी हम लिबर्टी ले लेते हैं, तो ये यहीं पे इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम हॉल में बैठ के आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर के पास तो क्वेश्चन बैंक इतना है कि वो ख़त्म ही ना हो, जितने मर्ज़ी प्रैक्टिस कर लो आप, ठीक है। उसके बाद आ गया सीसेट में। मैं आपको बस यही कह सकता हूँ आप जितना प्रैक्टिस करें। मैंने जो बुक्स फॉलो की थी, बुक्स में नोट्स तो हैं ही आपके इंस्टीट्यूट के, साथ में अगर आपको रेफ़र करना है एक्स्ट्रा कुछ तो RS अग्रवाल रेफ़र कर सकते हो आप। दैट विल बी इनफ फॉर दिस। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने कुछ नहीं किया था, सिर्फ जो इंस्टीट्यूट की पैराग्राफ्स आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, बस वही किए, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। ये होगी मेरी सीसेट में मैंने कैसे किया था। और सीसेट में हाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रैक्टिस करो ये वाला, तो ये ध्यान रखो कि आपके जो मार्क्स हैं अराउंड 100 या 100+ आ रहे हैं टेस्ट में, तो दैट इज़ फाइन फॉर यू। और मैं आपको ये बोलूँगा कि दिस इज़ द राइट टाइम। अभी नेक्स्ट अटैम्प्ट जो है आपका वो मई में है, शायद 28 मई को है, तो अभी ये राइट टाइम है आपके लिए कि सीसेट आप अभी कर लो। दिसंबर जनवरी तक सीसेट आपका फिनिश होना चाहिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हमारा सारा फोकस एग्ज़ाम जब पास होता है तो GS पे होता है, तो क्योंकि GS ने हमें सिलेक्शन देनी है, ये क्वालिफाइंग है। तो सीसेट अभी कर लो, और साथ में मैं अब आगे डिस्कस करूँगा मेंस का भी अभी करेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। ये हो गया मैं सीसेट का आपके लिए। अब आ गया प्रीलिम्स में GS। इसमें भी पहली बात यही है कि आप एक तो जो क्लास नोट्स हैं उससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो जैसे मैंने पहले बताया कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब वो नहीं सोच रहे कि आप क्या पढ़ के आए हो एकेडमिक पॉइंट से, 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, 10-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट वो चाहते हैं कि कितना ओपनली आप थिंक कर सकते हो वहाँ पे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज़ मस्ट। ये जो क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं सर, जो भी टीचर्स आपको
आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपका फोकस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको इंस्टीट्यूट में बताया होगा जैसे कि प्रीलिम्स की स्ट्रेटजीज़ में एलिमिनेशन टेक्निक होती है हमारे पास, या फिर एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा ना स्टेटमेंट्स में, जैसे कि ओनली लिख दिया कहीं पे, कोई ईयर मेंशन कर दिया 1969 में ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन वर्ड्स पे एक्स्ट्रा फोकस करना है आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में कि ये सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पे वो खेलते हैं। अब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अब 100 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर देना सिर्फ नॉलेज बेसिस पे ये पॉसिबल नहीं है प्रीलिम्स में। हमें अपना ओपन थिंकिंग तो लेके चलनी ही है वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन था आई थिंक इन 2019 वाले या 2019 वाले सीएससी में, उसमें था कि कोई इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा था। हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। पहला पॉइंट था दिस बॉडी वाज द फर्स्ट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया इन ईयर व्हाटएवर। अब आप सोच के देखो कि अब ये कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुई, 20-21 साल में कुछ ऐसा था, 1969 समथिंग कुछ था, कि इतने ईयर्स बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या टैक्स होगा जिसका हमने फर्स्ट ट्राइब्यूनल क्रिएट किया इंडिया में। नहीं पॉसिबल। तो इसको क्रॉस करो आप, ये गलत है। इससे आपका सारे बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं और एक ही आंसर बचता है। थोड़ा सा ऐसा हमें करना पड़ेगा, और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। सर के साथ वही मैं सर से बात करता हूँ तो सर से पता चलता है कि इंस्टीट्यूट में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू, 80,000 लाख के आसपास। और सर भी से डिस्कशन होती है तो सर बता रहे थे मेरा अभी भी टारगेट ये है कि बच्चों को मैं अराउंड 1.5 लाख क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करके दे दूँ। इतने क्वेश्चन कर जाओगे तो प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता आपका। इसके 1/3 भी कर जाओगे तब भी नहीं कोई रोक सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जीएस में। बाकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस, जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये देखो कि हर साल अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर फॉर दिस एग्ज़ाम, एंड उसमें से मेंस कितना क्वालिफाई करते हैं, अराउंड 20,000। तो 9,80,000 तो यहीं पे आउट कर दिए। तो सब देखा जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट प्रीलिम्स ही है। वो क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने पे जोर दे रहे हैं, पढ़ने पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे, क्वेश्चन बैंक नहीं फॉलो कर रहे जो हमें मिलता है, या जितने क्वेश्चन हम जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी और ये क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा अच्छा कि कुछ एरियाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म जैनिज़्म, उसका एक साल पे नहीं आएगा तो अगले साल 2 क्वेश्चन होंगे, फिर अगले साल 1 क्वेश्चन होगा। ऐसे ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एग्जॉस्टिवली डिटेल में प्रिपेयर कर लो। बट इन सब के लिए आपको टीचर से बात करनी है, आप खुद से एनालाइज करना है। तो ये सब करिए। प्रीलिम्स इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। जो मेरी गलतियाँ हुई थी वो आपको मैंने पहले बता दी, वो भी अवॉइड करना है आपको। अब हम चलते हैं मेंस के लिए तरफ। मैं यहाँ पे आपको मेंस का ये बताता हूँ कि आपको मार्क्स कैसे लेने हैं। इसमें कभी डिटेल में भी बात कर सकते हैं, इन फ्यूचर करेंगे, आता रहूँगा मैं सर के पास जब भी। हाउ टू इम्प्रूव मार्क्स। सबसे पहली गलती जो सब स्टूडेंट करते हैं, मैं भी करता था पहले अटैम्प्ट में, वी डोंट आंसर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कोई, फॉर एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस। हमने क्या किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन पढ़ा, हमने इस पर कहानी लिखनी स्टार्ट कर दी। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड इसके फीचर्स, ये सब करने शुरू कर दिया हमने।
बट उसने हमसे आरटीआई नहीं पूछा, उसने पूछा कि हाउ इट लीड्स टू ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें आरटीआई थीम है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये है, हमें ये एड्रेस करनी है। सबसे पहली जो मिस्टेक हमसे होती है, ठीक है। सेकंड ये है कि जो मैंने फर्स्ट टाइम में किया था, मैंने हर क्वेश्चन को एक ही वे में प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि मैंने इतना प्रिपेयर किया नहीं था। तो कभी पैराग्राफ, सारा पैराग्राफ में चल रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूँ, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन नहीं थी। फिर ये चेंज किया, जहाँ पे पॉइंट फॉर्म में चाहिए आंसर उसको पॉइंट फॉर्म में लिखो, जहाँ पे पैराग्राफ में चाहिए वहाँ पैराग्राफ में लिखो। और राज सर ने अराउंड, मुझे लग रहा है आप सबके लिए 5000 प्लस का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर के रखा है, इंक्लूड साथ में उसका सोल्यूशन भी है। इतना इजी आपको हो गया कि अब ये आपके हाथ में कितना क्वेश्चन बैंक आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या है कि मेंस में ना हमें थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो यहाँ पे स्मार्ट क्या है, स्मार्ट क्या है कि हमें जो यूपीएससी पेपर सेटर है और चेकर है उनकी डिमांड को फुलफ़िल करना है, तभी मार्क्स मिलने हैं हमें। तो स्मार्ट वर्क क्या कि उनको क्या चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या चाहिए, प्ले विद द कीवर्ड्स। एक कोई लिख रहा है कि हाँ आरटीआई से हमें अकाउंटेबिलिटी आ रही है, दूसरा बंदा उसमें कुछ माइक्रो अकाउंटेबिलिटी या मैक्रो अकाउंटेबिलिटी की बात कर देता है, या फिर पीपल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक आइडियल और वैल्यू को प्रमोट कर रहे हैं, कम्युनिटी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन, को गवर्नेंस। ऐसे वर्ड्स कहीं ना कहीं आप स्प्रिंकल आउट कर दीजिए अपने आंसर में, तो उससे उसको लगता है कि हाँ ये कुछ बच्चा पढ़ा हुआ है। साथ में क्या है कि प्लस फोर्थ में आपको रिपोर्ट्स, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नीति आयोग का 3 ईयर एक्शन एजेंडा, ये सब जो आती हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, इनमें से आपको ये चीज़ें एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ कमेटीज़ के नाम मिल जाएंगे, कुछ सुप्रीम कोर्ट के, जैसे न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट केस जजमेंट्स आती हैं वो वहाँ से मिल जाएंगी, और मोस्ट प्रॉब्ली सर के पास इन सब की भी कंपाइलेशन होगी, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो ये सब आपके आंसर को वैल्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक जो जनरल आंसर है उससे हम एक स्पेसिफिक आंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और जितना प्रैक्टिस, फिर मैं वही कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक विच हैज़ बीन गिवन बाय द इंस्टीट्यूट। अब ऐसे में मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आए हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। 15 अटैम्प्ट में मेरे थे अराउंड 138, 16 में मेरे थे 142, 17, 18 प्री नहीं हुआ, 19 में मेरे थे 136 समथिंग, और इस बार 2021 में, ये 2020 मैंने स्किप किया था, कहीं ऐसा ना समझना, 7th अटैम्प्ट है। 2021 में मेरे मार्क्स हैं 124, और ये भी इस साल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, जैसे इस बार चेकिंग हुई है। इवन वन ऑफ आवर बैचमेट है 80s में मार्क्स भी हैं लोगों के, जो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो ऐसे में क्या अप्रोच रहती थी, ऐसे में होपफुली आपको ऑलरेडी सब कुछ पता ही है, बट मैं एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको सबसे पहला क्या करना है ना, हमें यूपीएससी हमें हमारे साथ, आप ये देखिए, एनालाइज करिए, हमारे दिमाग से खेलता है। 13 पेजेस आर गिवन फॉर वन ऐसे। अब वो हमसे ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि 13 पेज भर के जाओ, कौन इंग्लिश अच्छी लिख रहा है। वो ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो पूछा है क्या आप उसी पे स्टिक रहते हो 13 पेजेस में। हम क्या करते हैं कि 2-4 पेज हमने सही लिखे, उसके बाद थोड़ा सा उस जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन की बात मैंने की थी उससे डिविएट होकर थीम ऑफ द क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं हम, और उसके अराउंड लिख रहे हैं, वहाँ पे मार्क्स कटते हैं। यहाँ पे हमें डेविएशन नहीं लेनी है, ऐसे में जो पूछा है वही करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक कैसे आपको बताता हूँ, जो मैंने इस साल लिखा था, देयर आर ऑलवेज, शायद थोड़ा सा वर्डिंग डिफरेंट हो, देयर आर ऑलवेज बेटर थिंग्स दैन बेस्ट थिंग्स।
मतलब इसमें क्या कह रहा है कि कभी भी लाइफ मतलब इनोवेशन हमेशा होती रहेगी, कभी भी कोई भी एक कॉन्सेप्ट आ गया वो उसकी जो यूटिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, वो ओवर द पीरियड वो नया होगा, कुछ डिमांड ऑफ द सिचुएशन जो लोगों की सिचुएशन को नीड है उस अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अब मैंने इसमें अपने प्रेमाइसिस क्या बनाए, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया कि इनिशियली एक टाइम था जब हमारे पास गवर्नेंस हमारा एंड था कि हमें गवर्नेंस करनी है भारत को। धीरे धीरे वो कंसेप्ट चेंज होकर हो गया गुड गवर्नेंस, फिर वो चेंज हुआ एथिकल गवर्नेंस, फिर वो चेंज हुआ ई गवर्नेंस, फिर वो अब मल्टीपल स्ट्रेटजी साथ में चलती हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में और भी क्या नया आ जाए। तो ये एक मेरा प्रीमाइसिस था जिस पे मैंने 1-1.5 पेज लिखा होगा। तो उस मुझे मतलब मैं ऐसा आंसर आपको बताऊंगा तो बता रहा हूँ, तो आपको भी लग रहा होगा कि हाँ इससे अच्छा शायद अभी नहीं सोच सकते। और वो चेकर के लिए भी ईजी हो गया, उसने देखा कि हाँ मैंने ये पूछा था, इसने भी ये बोला है, ठीक है, वो शायद अंदर ग्लांस भी ना दे कि एक परमाइस कवर हो गया। अब सेकंड परमाइस मेरा क्या था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पॉलिटी से निकाला एक पॉइंट, एक मैंने इकोनॉमी से उठाया कि पहले हमारा जो मोटिव था ग्रोथ था बेस्ड अपॉन जीडीपी। फिर समझ में आया कि ये इस ग्रोथ में चैलेंजेस क्या हैं, हमने छोड़ के डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट उठा लिया जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट भी जोड़ दिया, सोशल डेवलपमेंट भी जोड़ दिया। फिर मैंने क्या किया, फिर अब क्या हो गया, उसके बाद समझ में आया कि नहीं, ऐसी डेवलपमेंट हो सकता है वो सिर्फ कॉर्नर कर रहा हो हायर स्ट्रेटा, और जो लास्ट मैन इन द क्यू है उसके पास जा ही नहीं रहा ये। तो कंसेप्ट आ गया इंक्लूसिव ग्रोथ कि सबको साथ में लेके चलो। फिर समझ में आया कि ये भी ठीक है, बट क्या हमने ऐसे प्रोविजंस कर दिया जो इंक्लूसिव ग्रोथ तो हैं, फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा, फॉर एग्जांपल आरटीई, बट क्या वो हमने ऐसे बनाए, ऐसा तो नहीं कि 10 दिन के लिए जो बेनिफिट था लास्ट मैन को जाना वो 10 दिन के लिए तो मिला बट बाद में मिला ही नहीं। तो हम अब आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, और साथ ही में हमने ध्यान रखा कि फ्यूचर जनरेशन्स को भी साथ में लेके चलना है हमें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ये आगे फिर होगा, टाइम आएगा तो चेंज हो जाएगा फिर एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, जो भी हमें डिमांड होगी। वैसे ही मैंने किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 था एक टाइम पे, फिर 2.0, 3.0, 4.0, अब आगे पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। तो ऐसे प्रेमाइसिस बनाए। तो ये हमें इस टॉपिक को ही एड्रेस करना है, हमें इससे डिवेट नहीं होना। मेरा बेसिकली कहने का मोटिव यही है। कभी इसके बारे में इन फ्यूचर भी बात करेंगे। तो ऐसे में मैं अभी यही बताऊंगा आपको कि जो पूछा आप उस पर स्टिक रहिए, मार्क्स आएंगे। और ऐसे आंसर लिखने पे ना आप श्योर हो जाते हो कि, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है ना कि हमारे लिए चैलेंज होता है कि अपने जो पिछले प्रीवियस आपका रिजल्ट है उसको मेंटेन करना भी चैलेंज होता है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि एक सब्जेक्ट में हम पुअर परफॉर्म कर दें, बाकियों में एवरेज परफॉर्म किया, वो सिलेक्शन नहीं होगी। हमें या तो सब में एवरेज परफॉर्म करना है या एक में आउटस्टैंडिंग हो और दूसरा कंपनसेट कर दे। और आउटस्टैंडिंग होना बहुत डिफिकल्ट है, इतना हाई कंपटीशन है। तो एवरेज भी रहने के लिए ये भी चैलेंज होता है। पर जब आप ऐसे आंसर्स लिखोगे ना तो खुद को श्योरिटी होती है कि मेरे मार्क्स कम होंगे तो इसी रेंज के आसपास होंगे, बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस नहीं होने वाले। इसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो इस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। और सर तो आपके पास हैं ही हमेशा गाइड करने के लिए। मुझे तो याद है कि मैं सर के पास पहले जब आया, पढ़ा, जो भी किया, उसके बाद मेरा तो जर्नी इतनी लंबी रही है कि सर के साथ मुझे जुड़ना पड़ता था कि कभी फ़ोन से कभी मैसेज से। तो सर से हमेशा रिप्लाई आता था कि ये ऐसे करना है, वैसे करना है। कभी कभी मैंने सर से ऑनलाइन बुक्स भी मंगवाई हैं कि सर ये मुझे चाहिए बुक, आप भेज सकते हो। इनफैक्ट मेरा ये सेकेंड अटैम्प्ट जो PCS वाला था जो मैंने दिया, इसमें मुझे याद है कि एक टॉपिक होता है पॉलिटिकल थिंकर्स और थ्योरिस्ट वाला। तो उसके लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मुझे पता था कि मैं किसके पास जाऊँ। मैंने सर को किया मैसेज, सर को कॉल की, तो मैंने कहा सर ये मुझे ये आपके पास बना होगा कुछ ना कुछ, मुझे भेज दो। तो सर कहते कि मैं भेजता हूँ। मुझे लगा ठीक है। 2-4 दिन में घर पे पोस्ट आके बुक मिल गई मुझे, उसमें सारा कुछ ऑलरेडी कंपाइल्ड था। तो ये थोड़ा रहता है कि सर के साथ आप जितने भी लोग पढ़ चुके हो या पढ़ भी रहे हो, हमेशा कनेक्ट बना के रखो, क्योंकि हमें आगे पता नहीं। अब ये मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था टॉपिक, फिर मुझे लगा यार मैं ये भी क्यों छोड़ूं, जब मुझे मिल जाएगा इसके ऊपर मटेरियल, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये फ़ायदा होता है कि सर के साथ जुड़ने का। और सर के साथ कांस्टेंट गाइडेंस। आपको पता ही है, जो लोग पढ़े होंगे, कि सर से जब भी आप आते हो तो आपको हर चीज़ आपको बताई जाती है। ईज़िली एक्सेसिबिलिटी है सर की। और इसलिए हमेशा आप कनेक्ट बना के रखो, टीचर्स के साथ जुड़ के रखो। टीचर्स हमेशा गाइडिंग लाइट होते हैं। मेरे लिए तो ऐसा ही था, क्योंकि हमारे घर में किसी को गाइडेंस नहीं थी। बस मेरे मदर को इतना पता होता था कि हाँ ये जो कर रहे हैं अच्छे के लिए कर रहे हैं कुछ। उनको तो ये भी नहीं पता था कि BDPO क्या होता है,
पीसीएस क्या होता है, आईएएस आईपीएस क्या होता है। उनको अभी भी लगता है कि हाँ ये बीडीपीओ से ऊपर उठ के कहीं चला गया, उनको नहीं पता आईपीएस में क्या होना है। जब देखेंगे तब समझ में आएगा। तो इसलिए हमारे लिए हर एक जो आपके साथ लाइफ में कोई बंदा आता है ना, तो वो उसकी कुछ अहमियत होती है, सिग्निफिकेंस, हर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो टीचर्स की अपनी, गुरुओं को तो मतलब मैं कभी भूल ही नहीं सकता अपनी लाइफ में, कितना योगदान रहा है टीचर्स का। तो ये सब हो गया। अब इसके अलावा तो हमारे पास इंटरव्यू वाला बचा, वो तो जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो वो तब हो जाता है प्रिपेयर। 2-3 महीने होते हैं हमारे पास, इजीली मॉक इंटरव्यूज़ लगती हैं यहाँ पे भी, आप वो अटेंड करो, अपना बेसिक उसमें प्रिपेयर करना होता है। देयर इज़ नथिंग टू कि इतना कुछ नहीं है कि वो अभी हम अभी देखें। मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी उसको रोक सकते हो। तो दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि ये मैंने अपनी सारी स्ट्रेटजी बता दी है, मोटिवेट भी आपको कर दिया है। और इसके साथ मुझे लग रहा है कि और तो मोटिवेशन पे और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स थे। कभी मोटिवेशन लेनी हो तो मैं अपने एज अ बीडीपीओ के जो काम थे, जो मेरे से इंटरव्यू में पूछे, वो भी कभी शेयर करेंगे। कैसे वो चीज़ें कनेक्ट होती हैं आप लाइफ में। बस यही मैं आपको सबको यही बोलता हूँ कि जो भी करो अच्छा सोच के करो कि मैं अच्छा करूँगा, अच्छा करना है। पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा आपके माइंड में, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक हो। एक बार फेलियर होगा कोई बात नहीं, हमें कौन सा 5 अटैम्प्ट में 5 सिलेक्शन लेनी है, हमें एक अटैम्प्ट चाहिए, उसमें हम सिलेक्शन ले जाएंगे। बस ये ध्यान में रखना है, वो पता नहीं कब आएगा। अब मैं आपको अपनी 6th अटैम्प्ट की कहानी सुना देता हूँ। बताओ, अब डेस्टिनी में कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम आने पे ही होती हैं, और मुझे क्लियर हो गया इस सिलेक्शन के बाद कि मेरा सिलेक्शन होना था 6th अटैम्प्ट में ही होना था। आपको मैंने पहले ही बताया, मैं एक बार 7 मार्क्स से रहा, एक बार 16 मार्क्स से रहा। ये मार्क्स कुछ भी नहीं होते, एक ही पेपर में कवर हो सकते हैं और विद बहुत अच्छे मार्जिन से। बट ये क्यों नहीं हो रहा था? अब मैं पहले एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता था इतना ज़्यादा। मेरे मदर थे, उन्होंने इतनी स्ट्रगल देखी थी, तो उनको लगता था कि हाँ ठीक है, इनको रिंग पहना देंगे तो शायद इनके साथ कुछ पॉजिटिव हो जाए। तो वो हम भी पहन लेते थे कि चलो उनको सेटिस्फेक्शन होगी कि ठीक है, उनको लग रहा है कि हाँ ये हो गया, अब इनके साथ अच्छा होगा। अब क्या हुआ कि मेरे 2 फ्रेंड्स थे जिनको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते थे। वो एक फ्रेंड ने मुझे 2017 में एक पेज लिख के दिया था जिसमें ही सेड कि जीवन, हिंदी में लिखा था उसने, जीवन में बहुत संघर्ष होगा पर अंत में जीत होगी, तुम्हें वर्दी वाली नौकरी मिलेगी, जिसमें आईपीएस और एक आधी और लिखी थी। और मेरे पहले 5 अटैम्प्ट्स में डैफ में कभी आईपीएस मेरी प्रेफरेंस में सेकंड नहीं था, मतलब IRSIT सेकंड होता था, मतलब मुझे आईपीएस जाना नहीं। पंजाब में मेरा रैंक 19 था, मैं डीएसपी ने मैंने लिया नहीं था कि पुलिस में नहीं जाना। और उसके पीछे क्या रीज़न था? मैं ये समझता था कि मैं बड़ा सॉफ्ट हार्टेड हूँ, मैं कैसे वहाँ पे पुलिस में मुझे एक ऐसी इमेज थी कि कैसे क्रिमिनल्स के साथ डील करूँगा, तो इसलिए नहीं जाऊँगा, इसमें नहीं जाऊँगा। बट फिर वही बात बता रहा हूँ ना कि कोई ऐसा इंसान होता है जो आपको सही गाइड कर देता है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने एक बार ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि आप वाई डोंट यू फील IPS एज द सेकंड प्रेफरेंस। मैंने यही आंसर दिया उनको। तो बोलते कि जो तुम्हारा आंसर है ना, यही आज की रिक्वायरमेंट है पुलिसिंग सिस्टम में, हमें पुलिस को सॉफ्ट करना है और तुम तुम्हारे से अच्छा कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो मैंने फिर एंड में अपने मन से सोचा कि क्या करना है, और 6th अटैम्प्ट में मैंने पहली बार IPS सेकंड रखा था, और मुझे नहीं पता था कि मुझे IPS ही मिलना है। और ये दोस्त की एक कहानी, दूसरा ऐसे ही दोस्त एक और, वो है चित्रांशु, अभी भी उससे तो कांटेक्ट में बात होती है। तो वो भी 2019 में मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी। वो उसको भी इंटरेस्ट था एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब में। तो वो तो सीधा बोलता था कि यार तुम्हारी तो ये बताती है कि तुम्हें IPS ही बनना है। मैं बोलता था कि यार IPS तो मैं भरता ही नहीं हूँ। तो वो बोलता था कि हाँ यार तुम भरो IPS, मैं नहीं भरता था। तो यही अब रिज़ल्ट, इस बार का जो रिज़ल्ट था उससे एक दिन पहले हमारी फ़ोन पे बात हो रही है, और बाई चांस उसको मैं अपना DAF2 भेजना भूल गया। DAF2 भेजा नहीं जहाँ पे हमारी सर्विस प्रेफरेंस हो। तो मुझे फ़ोन पे क्या बोल रहा है, यार तुम पता नहीं क्यों नहीं IPS ऊपर भरते, सब तुम्हें, मुझे तो हमेशा लगता है तुम्हें IPS मिलना है। तो मैंने सोचा यार, मैंने उसको बोला भर तो दिया इस बार, और कितना पीछे भरेंगे, सेकंड भर दिया तो यहाँ आगे भरें। कह रहा तुमने सेकंड भरा है। तो मुझे बोला यार गुस्सा मत होना, कल हमें IAS नहीं मिलेगा, हमारा रैंक 300 से 400 के बीच में आएगा और तुम्हें IPS मिलेगा। और ये अब मैं बिलीव करने लगा हूँ कि ये डेस्टिनी में लिखा ही अब था, अभी होना था, और IPS वही रैंक आया 388। एग्जैक्ट उसके यही वर्ड्स थे, सेम वर्बिटम, शायद रिकॉर्डिंग भी पड़ी हो। तो इसलिए
अपनी लाइफ में ना कभी ये मत सोच के चलो कि यार नहीं हो रहा। मैं भी बहुत डिप्रेस होता था, नहीं हो रहा, मैं क्यों रह जा रहा हूँ, मैंने ऐसे क्या कर दिया, मैंने किसका गलत कर दिया। तो बट वो मैं हमेशा भगवान में बिलीव करता हूँ। मैं तो आपको भी बोलूँगा जो नहीं कर रहा वो भी स्टार्ट कर दो भगवान में बिलीव करना, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो वो ही करवा रहा है, हम तो सिर्फ कर रहे हैं, हम एक मीन्स हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखा है हम तभी कर रहे हैं और पॉजिटिव होगा ही होगा। हमेशा यही सोच के चलो कि मेरी सिलेक्शन होनी ही होनी है, आज नहीं होगी तो अगले अटैम्प्ट में होनी ही होनी है किसी टाइम। तो इतना ही कह सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा मुझे लग रहा है मोटिवेट नहीं कर सकते। तो आई होप एंड आई विश कि आप प्रिपरेशन अच्छे से करो, जो गाइडेंस आपको चाहिए सर के साथ डिस्कस करो। मुझे भी अगर इन फ्यूचर आप इनवाइट करना चाहते हो सर को बोल देना, मैं आ जाऊँगा कभी भी जब फ्री होंगे। तो ये सब चलता रहेगा, बट आपको ये ध्यान रखना कि आप प्रिपरेशन करो, ऑनेस्ट अप्रोच के साथ करो, किसी का गलत नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, सिर्फ अपने आप को बेहतर करना है हमें, हमारा ये मोटिव है और रिज़ल्ट अपने आप आएंगे। इतना ही बोल सकता हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि इस सेशन से कुछ आपको बेनिफिट होगा एंड वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड की बात होगी कि मैंने किसी को मोटिवेट कर दिया लाइफ में, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बदल सकते, बट अगर कोई एक बंदा भी मैं मोटिवेट कर दूँ ना, मुझे लगता है कि और वो सिलेक्ट हो जाए और लाइफ में बहुत अच्छा कर जाए, कहीं आगे और भी चले जाए, तो मेरी ये सेशन सक्सेसफुल है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।